Hi friends, welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. Friends, today I am going to teach you regarding emergency preparedness and response. Emergency preparedness and response is a mandatory requirement in ISO 14001 and 2015 in the clause number 8.2. So during this session I will cover the definition of emergency preparedness and response and how to identify emergency situations in organization and how to make procedure based on emergency preparedness and response. So friends, let's continue this video till end. Friends, this is our training course template. These all trainings are teaching with perfect knowledge of theoretical as well as practical on Excel sheet and PowerPoint. Friends, if you do not have knowledge of Excel and PowerPoint operating, then this is advantage for you. You can get the knowledge of Excel and PowerPoint operating during joining this course. Friends, online as well as offline training facilities available. If you need online classes, then your certificate will be mail or courier at your residence address. Friends, if you join our complete advanced training course as shown in template, then job guarantee is 100% after completion of training course. And friend, after completion of our advanced training course, our participant can make all industrial document on self knowledge and he can implement self prepared document in any industries after joining. If any guys interested, can contact on the number given on screen. Let first we understand what is emergency preparedness and response. It is a process of identifying potential accidents in organization that can adverse effect on organization and prepare the actions in responding and mitigation of potential accidents. Purpose of emergency preparedness and response: to establish procedure for preparedness in order to deal with various identified emergencies. Scope: this procedure is applicable to all the emergencies identified by the organization to avoid adverse EMS consequences. Process owner is HR, human resource, and list of emergency accidents in organization. First one is fire, second food poisoning, third earthquake, fourth one spillage, and fifth injury, and sixth one electric short circuit. So friends, these are 6 major accidents emergencies that may be occur in organization. Now let's discuss preparedness and responding with responsibility फॉर हैंडलिंग दीज इमरजेंसी सिचुएशंस. दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद. हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है. सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्डिंग. फर्स्ट वन इज़ फायर. इन फायर के केस में हमको क्या क्या प्रिपेयर्डनेस करनी होगी. फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. ये आपको एक्शन लेना पड़ेगा. जैसे प्रिपेयर्डनेस में आपको क्या क्या एक्शन लेने हैं. फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी HR की. सेकंड, पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉय ऑन द यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी HR. आपको फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दिलानी पड़ेगी एज पर टाइम ऑफ इंटरवल. ओके, जो भी आपने ट्रेनिंग का प्लान बना रखा होगा. C, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स विद एडिक्वेट कंटेंट एट द पेशेंट साइट. आपको जो है फर्स्ट एड का बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन में रखना होगा. जैसे द फर्स्ट एक्टिविटी टू कंट्रोल द एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी. नेक्स्ट D,
कंडक्ट मॉक ड्रिल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वाइस इन ए ईयर। साल में 2 बार आपको मॉक ड्रिल कराना पड़ेगा ताकि सभी बंदे उससे अवेयरनेस हो जाएं जो भी इमरजेंसी आने वाली है, मीन्स फायर से रिलेटेड। ओके, यस। सेकंड ई पॉइंट क्या है, लाइजन विद नियर बाय हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल के साथ में अटैच रहना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी देन यू हैव टू कॉल दी हॉस्पिटल। एंड इमरजेंसी क्या रहेगी, ये तो हो गई आपकी फायर के केस में प्रिपेयर्डनेस कि आप एडवांस में क्या क्या प्रिपेयर रखोगे और रिस्पॉन्स क्या दोगे। अब इमरजेंसी क्या क्या हो सकती हैं फायर लगने के बाद, और फायर लगने के बाद आपको क्या क्या करना है उसमें। रेज अलार्म ऑन सीइंग द फायर बाय शाउटिंग एंड इन्फॉर्म द सिक्योरिटी इमरजेंसी कंट्रोल रूम, आल्सो इन्फॉर्म द नियरेस्ट एचओडी। जब आपको जो है आग लगने के बाद क्या करना है, अलार्म को रेज करना है और अपने कंसर्न एचओडी को बताना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, द पर्सन हु फर्स्ट सी द फायर और सिम्टम्स ऑफ द फायर। बी पॉइंट में क्या दे रखा है, ब्लोइंग ऑफ द फायर अलार्म 5 सेकेंड ब्लोइंग 1 सेकेंड ऑफ रिपीटेड 3 टाइम। इसका एक जो है कोड वर्ड होता है, अगर आग लग जाती है तो आपको फायर अलार्म को 5 सेकेंड तक आपको बजा के रखना है, 1 सेकेंड तक ऑफ रखना है, और ये कितने टाइम तक करना है, 3 टाइम तक। कितना, 3 टाइम्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी और द पर्सन हु फर्स्ट सी दी फायर, या तो सिक्योरिटी की रहेगी या जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया है वो उसको बजा सकता है। सी पॉइंट क्या है इमरजेंसी में, इवैक्यूएशन ऑफ फैक्ट्री। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सेफ्टी कमेटी मेंबर्स। आपको फैक्ट्री को खाली करवाना है, खाली करवाना। डी, टेक अटेंडेंस ऑफ पर्सनल एट असेंबली पॉइंट एंड अकॉर्डिंगली एडवाइज द सेफ्टी टीम। आपको जब इवैक्यूएट कराओगे फैक्ट्री को तो जहाँ गैदरिंग एरिया होगा वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को काउंट करोगे एज पर अटेंडेंस, सभी बंदे वहाँ पे आ गए हैं नहीं आ गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, एचआर की। ई पॉइंट क्या है, रशिंग टू द साइट ऑफ फायर एंड क्विक असेसमेंट अबाउट द नीड टू कॉल फायर ब्रिगेड। आपको फायर लगने के बाद आपको तुरंत किसको बनाना है, फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। कौन करेगा, फायर फाइटिंग टीम। फर्स्ट, कॉल फायर ब्रिगेड इफ रिक्वायर्ड। ये आपको कॉल जब ही करना है जब रिक्वायरमेंट हो, जब ज़्यादा आपको लग रहा है कि आग कंट्रोल नहीं हो सकती। जी पॉइंट क्या है, एक्सटिंग्विश द फायर। आपको फायर को बुझाने की कोशिश करनी है। जो एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं ना, और जो बंदे ट्रेनिंग ले चुके होते हैं वो उसको फायर एक्सटिंग्विश के थ्रू फायर को बुझाने की कोशिश करते हैं। एच, असेस एनी कैजुअलिटीज एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको किसी को इंजरी हो गई है तो आपको फर्स्ट एड वहाँ पर देना पड़ेगा। फर्स्ट एड टीम होती है जिसको फर्स्ट एड की पूरी नॉलेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक द अफेक्टेड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल इफ रिक्वायर्ड। आपको जो इंजर्ड पर्सन होगा, अफेक्टेड पर्सन होगा, उसको आपको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की होती है। मिटिगेशन ऑफ ईएमएस इशूज रेजिंग फ्रॉम हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडलिंग करने में जो आपको इशूज होते हैं या इंजरीज हुई हैं, आपको उनको मिटिगेट करना है बाय टेकिंग एक्शन। इसमें भी जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की होती है और सेफ्टी कमेटी की होती है। सेकंड एक्सीडेंट क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग। इसमें क्या एक्शन लेना है आपको प्रिपेयर्डनेस में, चेक द फूड सैंपल एवरी टाइम इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड गेट रेडी टू बी सर्व्ड। आपको जब भी खाना बनेगा उसको सबसे पहले सैंपल लेके चेक कराना है, उसके बाद खाने को आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सर्व करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कैंटीन कमेटी मेंबर्स की। इसमें इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है, स्टॉप द प्रोसेस ऑफ फूड सर्विंग द मोमेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फूड पॉइजनिंग रिसीव्ड। अगर फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो आपको खाने का जो सर्विस है वो बंद करनी पड़ेगी। कौन करेगा, कैंटीन कमेटी मेंबर करेगा। एंड टेक द अफेक्टेड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाना है उस बंदे को जिसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, एचआर वाला बंदा करेगा। सी पॉइंट क्या है, इन्फॉर्म द हॉस्पिटल रिगार्डिंग सच इंसिडेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर। डी पॉइंट क्या है, डू नॉट थ्रो द फूड अंटिल द सैंपल फ्रॉम द सेम फूड इज चेक्ड। आपको खाने को जब तक नहीं फेंकना है जब तक उसका दूसरा सैंपल ना आ जाए, ठीक है, रिपोर्ट ना आ जाए डॉक्टर की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर वाला की रहेगी। ई पॉइंट क्या है, इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न्ड रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द रिपोर्ट। आपको सर्कुलेट करना है रिजल्ट जो भी रिपोर्ट का होगा। एफ पॉइंट क्या है, मेक श्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी महम ड्यूरिंग सच इमरजेंसी। उस इमरजेंसी के बारे में किसी को कोई अफवाह ना हो।
थर्ड क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से केस में क्या क्या प्रिपेयर्डनेस रहेगी। ए पॉइंट है पीरियोडिक ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय ऑन अर्थक्वेक, आपको अर्थक्वेक के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, इस पर ट्रेनिंग प्लान। बी पॉइंट क्या है, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स विद एडिक्वेट कंटेंट एट पेशेंट साइट, आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी है अपनी कंपनी में। सी पॉइंट क्या है, लाइजन विद नियरेस्ट हॉस्पिटल, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल के साथ में कॉन्टैक्ट बना के रखना है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या क्या आ सकती हैं, स्विच ऑफ द मेन सप्लाई, जब भी आपको अर्थक्वेक वगैरह का कोई इमेजिनेशन होता है तो सबसे पहले क्या करना है एम्प्लॉयज़ को, अब सभी मेन स्विचेस को बंद कर देना है, ठीक है। ये किसकी कमेटी रहेगी, SHE कमेटी मेंबर्स, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट वाले मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये। बी पॉइंट क्या है, इन्फॉर्म टू दी सिक्योरिटी इमरजेंसी कंट्रोल रूम और HR, आपको सबसे पहले इन सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना है, सेफ्टी कमेटी करेगी इसको। सी पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ अर्थक्वेक पोजीशन योर सेल्फ बिलो सम हार्ड सरफेस लाइक टेबल इफ पॉसिबल, ये एक जो है थंब रूल है। और ड्यूरिंग अर्थक्वेक आपको क्या करना है, किसी टेबल वगैरह के नीचे या किसी हार्ड सरफेस के नीचे आपको क्या करना है, बैठ जाना है। डी पॉइंट असेंबली एनी कैजुअलिटीज़ एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड इफ़ रिक्वायर्ड, किसी चीज़ का इंजरी होने पर आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ई पॉइंट क्या है, टेक दी अफेक्टेड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल इफ़ रिक्वायर्ड, आपको उस बंदे को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो। एफ पॉइंट क्या है, मिटिगेशन ऑफ EHS इशूज अरेजिंग फ्रॉम हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, आपको इमरजेंसी के ड्यूरिंग जो भी इशूज रेज्ड हो रहे हैं उनके इफेक्ट को कम से कम करना पड़ेगा फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस। यस, सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ की भी रहेगी, HR की रहेगी और सेफ्टी कमेटी की रहेगी। फोर्थ एक्सीडेंट क्या हो सकता है, स्पाइलेज, इसमें प्रिपेयर्डनेस क्या है, प्रोवाइड नेसेसरी हैंडलिंग इक्विपमेंट टू ट्रांसफर फ्लूइड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनोदर और एनी मशीन सो दैट स्पाइलेज डज नॉट अक्कर। स्पाइलेज का मतलब होता है कि सॉफ्ट फ्लोर में कोई फ्लूइड वगैरह का गिर जाना, ग्रीस का गिर जाना, ऑयल का गिर जाना, ओके, कोई लिक्विड चीज़ का गिर जाना जिससे आप फिसलने से कोई इंजरी हो सकती है। सेकंड क्या है प्रिपेयर्डनेस में, प्रोवाइड सेकेंडरी कंटेनमेंट एट द बेस और अराउंड दी कंटेनर मशीन, आपको जो है कंटेनमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए किसके आसपास, कंटेनर के आसपास, जो कि कोई किसी फ्लूइड वगैरह से भरा हुआ हो, ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसर्न HOD। इसमें इमरजेंसी क्या हो सकती है, इन्फॉर्म द कंसर्न HOD एरिया सुपरवाइजर द पर्सन हु फर्स्ट सी द स्पाइलेज, किसी ने भी उसको गिरते हुए देखा है तो वो उसको इन्फॉर्म कर सकता है। बी, कंट्रोल द स्पाइलेज एंड स्टॉप द कॉज ऑफ स्पाइलेज बाय क्लोजिंग लीकेज ETC, आपको स्पाइलेज को स्टॉप करने के लिए जहाँ से लीक हो रहा है कोई फ्लूइड उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेनेंस सुपरवाइजर करेगा इसको। सी क्या है, क्लीन अफेक्टेड एरिया यूजिंग सॉ डस्ट और वेस्ट क्लॉथ, यहाँ पे जिस सॉफ्ट फ्लोर पे कोई फ्लूइड गिर गया है तो या ऑयल गिर गया है तो आपको सॉ डस्ट से यानी मिट्टी वगैरह से उसको क्या करना है, साफ़ करना है और किसी कपड़े से साफ़ करना है। नोट, इफ़ देयर इज़ ए स्पाइलेज ऑफ केमिकल प्लीज़ रेफर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS एंड अकॉर्डिंग टेक ए एक्शन, अगर कोई केमिकल गिर गया है तो आपको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है, कपड़े से साफ़ नहीं करना है, MSDS का उपयोग करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नियर बाय स्वीपर और हाउसकीपर। डी पॉइंट क्या रहेगा, स्टोर oiled sawdust racks in the waste bin means for hazardous waste and dispose it of in suitable hazards based landfill, आपको जो आपका जो स्टोर ऑयल्ड है या सॉ डस्ट है आपका जो इसको क्या करना है, इसको वेस्ट बिन में रखना है और डिस्पोज करना है उसको, ओके। सेकंड क्या है इसका ई पॉइंट, मिटिगेशन ऑफ EHS इशूज अराइजिंग फ्रॉम हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी एज पर द सिचुएशन, ठीक है, आपको सिचुएशंस को हैंडल करना है और उसको इफेक्ट को मिटिगेट करना है। यस, प्रिकॉशंस लेकर को प्रिकॉशन लेके उनकी इफेक्ट को कम से कम मिनिमाइज करना है आपको, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी HR की और सेफ्टी कमेटी की। फिफ्थ एक्सीडेंट क्या है, इंजरी, अगर इंजरी हो जाती है तो उस केस में क्या क्या रिस्पॉन्स रहेगा। प्रिपेयरनेस क्या करनी पड़ेगी हमने, पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड कंटेंट एंड देयर अप्रोप्रिएटनेस फॉर यूज़, आपको फर्स्ट एड को टाइम टू टाइम चेक करना है कि उसके अंदर सारे कंटेंट जो दिए हुए हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, पता लगे इंजरी होने पर कोई उसमें मेडिसिन ना मिले, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी HR की। सेकंड पॉइंट क्या है, लाइजन विद नियर बाय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नंबर उसमें लिखा रहना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में।
इमरजेंसी क्या क्या हो सकती हैं? कॉल पर्सनल ऑन फोन टू HOD, आपको HOD को कन्फर्म करना है। इन्फॉर्म टू सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, HR करेगा इसको। प्रोवाइड फर्स्ट एड टू इंजर्ड, इंजरी होने पर फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना है, फर्स्ट एड टीम करेगी इसे। डी पॉइंट क्या है? इफ़ इंजरी इज सीरियस देन टेक द अफेक्टेड पर्सन टू नियर बाय हॉस्पिटल, आपको अफेक्टेड पर्सन को नियर बाय हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ सकता है। ई पॉइंट क्या है? इन्फॉर्म दी फैमिली ऑफ द अफेक्टेड एम्प्लॉय, आपको जो बंदा इंजरी हुई है उसके फैमिली मेम्बर को भी क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी HR बंदे की है ये। एफ पॉइंट क्या है? प्रोवाइड एडिक्वेट कंपनसेशन ट्रीटमेंट एक्सपेंस टू दी अफेक्टेड एम्प्लॉय, जो बंदा इंजरी हुआ है या अफेक्टेड हुआ है उसको आपको कंपनसेट देना पड़ेगा और उसके इलाज के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। मिटिगेशन ऑफ EHS इशूज अराइजिंग फ्रॉम हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से जो जो इशूज रेज्ड हो सकते हैं उनके इफेक्ट को मिनिमाइज करना है बाय टेकिंग प्रिकॉशंस। ओके ओके सर। लास्ट वन, 6th एक्सीडेंट क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और क्या क्या एक्शंस होगा? प्रिपेयर्डनेस हम देखते हैं पहले क्या रहेगा। प्रिपेयर्डनेस रहेगा इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, रबर ग्लव्स, रबर शूज ETC एट रिलीवेंट पॉइंट, आपको वहाँ पे क्या होने चाहिए? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, रबड़ के ग्लव्स होना चाहिए, रबड़ के शूज होने चाहिए, मैट होना चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? HR वाले की और मेंटेनेंस वाले की। समझ रहा है ना? बी पॉइंट क्या है? पीरियोडिक ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय ऑन द यूज ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, आपको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी HR वाले की आती है। सी पॉइंट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सर्किट डायग्राम फॉर एंटायर फैक्ट्री, आपको फैक्ट्री के थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्किट डायग्राम को चेक करना है और टाइम टू टाइम रिपेयर करना है। कौन करेगा? मेंटेनेंस। एंड डी, इंश्योर प्रॉपर वायरिंग ऑफ, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल के केस पर? अवॉइड लूज कनेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जब इस प्रॉपर वायरिंग को चेक करोगे तो उसको लूज कनेक्शन वगैरह को चेक करना है। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोवाइड प्रॉपर कवरिंग ऑफ लूज जॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक वायरिंग्स विद इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप ETC, आपको लूज वायरिंग को टाइट करना है और जो वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उस पर इंसुलेशन कवर चढ़ाना है, टेप वगैरह लगानी है पूरी प्रॉपर तरीके से, मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पॉइंट नंबर ई, प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्विचेस बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिलीवेंट एरिया, हर एक एरिया में आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है? यस यस यस, होता है ना साइन हजार्ड्स का लगा रहता है, स्कार्प लगा रहता है, डेंजर्स 440 वोल्ट, ये सब लिखा रहता है ना ऐसे। एफ, इंस्टॉलेशन ऑफ इमरजेंसी लाइट्स टू प्रोवाइड विजिबिलिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट ऑफ। ठीक है? आपको यहाँ पे क्या करना है? इमरजेंसी लाइट वगैरह लगानी है। अगर इन केस कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो वो इमरजेंसी लाइट्स कट ऑफ हो जाएगी, जिससे मेंटेनेंस वाले को पता लग जाएगा कि कुछ इसमें दिक्कत हो गई है। जैसे घरों में क्या हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो MCB गिर जाती है। हाँ ठीक है? इसमें इमरजेंसी में क्या क्या करना है आपको? क्या करेगा इमरजेंसी में? पॉइंट नंबर ए, रेज अलार्म ऑन सीइंग द शॉर्ट सर्किट और सिम्टम्स बाय शाउटिंग एंड इन्फॉर्मिंग टू द सिक्योरिटी अबाउट द सेम। अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है तो आपको इन्फॉर्म करना है सिक्योरिटी को और हल्ला भी मचाना है। ठीक है? और अलार्म को भी लगाना है। आल्सो इन्फॉर्म द सिक्योरिटी ऑफिसर HR विच एवर इज पॉसिबल, जिस किसी को हो सके आपको इन्फॉर्म करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है? कौन करेगा? जिसने अभी सबसे पहले देखा है। बी पॉइंट क्या है? बिलो इमरजेंसी सायरन, वहाँ पर इमरजेंसी सायरन लगा हो रहता है। फायर लगने पर या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने पर या किसी चीज़ का एक्सीडेंट होने पर आपको यस सायरन को बजाना है, सिक्योरिटी वाला बजाता है इसको। सी पॉइंट क्या है? स्विच ऑफ द मेन स्विच प्रोवाइडिंग सप्लाई टू द एरिया, जहाँ से सप्लाई हो रही है उस मेन स्विच को बंद कर देना है, मेंटेनेंस वाला करेगा। डी पॉइंट क्या है? इन्फॉर्म मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करना है। ओके, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करेगा। नाम लिख दिया मैंने, नाम नहीं आता यहाँ पे। ई पॉइंट क्या है? असेस एनी कैजुअलिटीज एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट, अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो आपको फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, फर्स्ट एड टीम करेगी उसे। एफ क्या है? टेक द अफेक्टेड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल इफ रिक्वायर्ड, आपको अफेक्टेड पर्सन को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी HR की। ओके, दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 14001 2015
If having any clarification, you can call the number that given on screen. Thank you.